Okay. A very good evening, the esteemed faculty for today and our own from Ahmedabad, CA Dr. Falguni Bhatt, Chairman Ahmedabad Branch CA Harit Dhariwal, senior members I can see Ajit Bhai, Hardik Bhai, other senior Madhvi Ben, convener for today's series CA Meera Shah, other senior members and my dear friends. Welcome to this wonderful session by our own Falguni Ben. Now it has become a customized, now it has become a routine for Ahmedabad branch of ICI કે ફાલ્ગુની બેન નો સેશન ના હોય આખા વર્ષમાં એવું બને જ નહીં. And you highly motivate us. We see in the senior members group 4 hours, 5 hours meditation, and I'm sure that would be a very good source of energy for you. And that is the objective of today's session. Taking the session ahead, let's begin the session with ICI motto. Request each one of you to place their right hand on their heart for ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चनान्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you, Shehzad Bhai. Welcome back. Om Shanti to all participants. With this, I request Chairman Ahmedabad Branch CA Harit Dhariwal to give opening remarks. Thank you, Anjali Ben. Very respected CA Dr. Falguni Bhatt. Thank you, ma'am, first of all, for I'll tell you before this session for arranging the last two sessions on happiness. I think you have been phenomenally, working hard for us. Thank you so much for arranging those sessions and agreeing to come as a speaker today. Respected Ajit Bhai Shah, Hardik Bhai Patel, who I can see on the screen. Very good to see you. I think it's very important to keep the cameras on. We get the connect as a faculty also, and even as a speaker, we get to see whom we are talking to. So thank you, Hardik Bhai, Ajit Bhai, and Meera, obviously the coordinator for the session. A very good evening to all. I will not take much of a time. I know it's only a 1 hour session, so I'll just briefly tell you that we have a Right to Information Act session coming at Ahmedabad branch tomorrow. So those who want to know about RTI, we have a very important session tomorrow. Our direct tax web convention is on. So this Friday, Saturday, we have two very important sessions on the real estate NRI taxation. So please take benefit of it. I'll not take much of a time, but again, thank you, Falguni Ben, for taking out a precious time. And today's topic on the core values of inner self and also on the energy centers is a wonderful topic. And we are also looking for tomorrow's session when happy, the title is so catchy, happiness high and tension bye bye, something like that. So it's a wonderful session that we're looking today and tomorrow. Thank you again. And my special thanks, since I am seeing Ajit Bhai here and Falguni Ben here, thank you for being inspirational throughout our movement 73. Sir, I'll tell you, Ajit Bhai, looking at you, everybody gets inspired. Your videos of your yoga, your walking, your schedule, everything, it's an inspiration for all of us. And Falguni Ben, the way you do meditation and yoga, it is commendable. I think even we do half of it, it is, that is an achievement for us. So thank you, both of you for guiding us in this movement 73. And now I request Meera to please introduce today's faculty. Thank you. Thank you so much, Harit sir. Om Shanti, everyone. I am pleased to introduce you, ma'am, in the forum. CA Dr. Falguni Bhatt, ma'am. Ma'am is a chartered accountant with 2 gold medals and PhD in Vedic Yoga, quantum healing energy from Yog Sanskritam University, Florida, USA. Her educational qualification also includes PG Diploma in Memory Science and Psychoneurobics from Yog Sanskritam University, Florida, Diploma in Naturopathy and Yoga Teachers Training course,
BCom and MCom from Gujarat University. Apart from being an excellent professional, she is an international healer, a cake designer, and a house engineer. Her counseling services inter alia include mind, memory, and thought management, balance sheet of life, students counseling, engineering of soul energy, life skills, how to balance thyroid, sleep management, bliss and happiness, 7 core values of life, healing meditation for health and happiness, relationship with God for health and happiness. She has conducted various programs in Ahmedabad and during her PhD. And as a subject of the thesis, she has dealt with about 60 patients, including those suffering from thyroid cancer and heart problems. Today, she is going to guide us on healing meditation for health and happiness. She'll focus on 7 core values of inner self, 7 energy centers, importance of Vibgyor, and digital detox. Thank you so much, ma'am, for sparing your time and enlightening us. Over to you, ma'am. Thank you so much. Om Shanti. Thank you, Sister Anjali. Thank you, Brother Harit. And also thanks to Meera, sister. Of course, अजीत भाई को कैसे भूले हम, हमारे senior brother, and also he is like motivational speaker also and motivational brother, like you know senior group में बहुत अच्छे से वो participate कर रहे हैं. तो जो शरीर का जो हमारा बैलेंस है, शरीर की जो एक्सरसाइज है, उसमें हम रियली उनको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. साथ साथ में मन के बैलेंस के बारे में अभी जो हम बात करेंगे कि कैसे हम मन के बैलेंस और शरीर के बैलेंस के साथ हम ये हीलिंग मेडिटेशन का यूज कर सकें. तो अभी हम शुरू करते हैं. यस, जैसे ही मीरा सिस्टर ने बताया, अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर पेन और पेपर आप ले लेंगे अभी साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको जरूरत पड़ सकती है. आप पीछे मेरा नंबर बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो आप पहले से लिख सकते हैं. 9925116151 नंबर है. 9925116151. क्योंकि यहाँ हम जो बात करेंगे वो एक थियरी बेस्ड नहीं है. जितना समय है हमारे पास, उसी समय में मैं बहुत जल्दी से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक है हीलिंग मेडिटेशन फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. तो उसमें हम क्या कवर करेंगे? 7 कोर वैल्यूज ऑफ इनर सेल्फ, 7 एनर्जी सेंटर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ विबग्योर एंड डिजिटल डिटॉक्स. तो कहते हैं कि हम है क्या, है ना. मैं क्या हूँ? मैं फाल्गुनी हूँ, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी ये डिग्री है, मेरे पास इतने सब वेल्थ है, लेकिन मैं क्या हूँ? तो मैं एक सेल्फ हूँ, यानी कि एक शक्ति हूँ. तो वो शक्ति क्या है? तो उसे शॉर्ट में बताए तो स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म. जब तक हम यहाँ इस सेल्फ को नहीं समझेंगे तब तक हम हीलिंग शुरू नहीं कर सकते. ये बहुत एक बेसिक प्रिंसिपल है. जैसे हम कोड ऑफ कंडक्ट हमारा होता है ना, नियम यम नियम. अष्टांग योग क्या है? अभी हम बहुत अच्छे से मूवमेंट 73 में अष्टांग योग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं. योग यानी एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, हम इतना ही समझते हैं. लेकिन जैसे जैसे स्पीकर्स आते हैं तो हम देखते हैं कि अष्टांग योग यानी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यानी कि गिव अप करना, छोड़ना, ध्यान, धारणा, समाधि, ये मिला के पूरा अष्टांग योग होता है. तो ये जो ये मेडिटेशन है वो हम इजीली कैसे कर पाए, और मेनली आज फोकस है हमारा कि हम शरीर का जो है, जो भी डिसीज है, उसको कैसे हील करें, है ना. तो उसके लिए हम जब तक हमारी सोल एनर्जी को रियलाइज करेंगे तभी हम वो हीलिंग शुरू कर सकते हैं. हमारी सोल एनर्जी है कहाँ? तो हम देखते हैं कि दोनों आईब्रोज के बीच में जब अंदर एक पॉइंट जाता है, वहां हमारी एक सोल एनर्जी है. और हमारा ब्रेन वेव्स यानी कि हमारा जो विचार होता है वो ब्रेन वेव्स की तरह निकलता ही रहता है. तो वो ब्रेन वेव यानी कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल हमारा विचारों की चलती हैं, आपको सरप्राइज लगेगा. लेकिन दिन में पूरे 24 आवर्स में 50 to 60,000 थॉट्स हमारा चलता है. और अभी के सिचुएशन में 70-80,000 तक पहुंच गया है.
तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा हमारा थॉट्स चलता ही रहता है। यानी हमारा स्टॉक अगर अच्छे से नहीं होगा तो एक दिन स्टॉक वो खाली होना ही हो। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और जितना हम थॉट्स कम करेंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। ये स्टॉक हमारी शक्ति का चाहिए। तो यहाँ हम जैसे सेल्फ अभी बात कर रहे थे आत्मा शक्ति की, तो ये शक्ति है क्या? एनर्जी है। तो एनर्जी बनती कैसे है? तो ये जो सोल यानी कि शक्ति है वो मन बुद्धि संस्कार से। मन जो है वो सोचने का कार्य करता है। ये कह सकते हैं 3 फैकल्टीज है ना। ये शक्ति जो है वो एक लाइक स्टूडेंट है और इसको ये 3 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। अगर ये यहाँ एक का ठीक से पढ़ाई करेगा, दूसरे में ध्यान नहीं देगा, तो भी ये स्टूडेंट पास नहीं कर पाएगा। तो अभी यहाँ हम कह सकते हैं सोचना ये मन का कार्य है, बुद्धि यानी कि इवेल्युएशन करना है, संस्कार यानी रिपीटेशन, इम्प्रेशन वो मेमोरी बैंक हो जाती है, वो और आगे हम थोड़ा समझेंगे। और हमारा जो शरीर है वो जैसे हड्डी मांसपेशियों का शरीर है, उसमें एनर्जी आती है तो हम जीवात्मा यानी कि हम एक ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। ह्यूमन यानी कि शरीर और उस वो चलाने वाली शक्ति यानी बीइंग। और यहाँ एक बहुत सुंदर हमारे ब्रह्मा कुमारीज में मैंने जो सीखा है, बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है, वो सालों से चलाया है। यानी कि 85 इयर्स से कह सकते हैं, ये जब से स्थापना हुई है तब से भगवान ने सिखाया है कि ये जो गाड़ी है वो गाड़ी हमारा शरीर है, और उसमें अगर ड्राइवर नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी और अच्छी गाड़ी हो, लेकिन ड्राइवर के बिना ये चल नहीं सकती। यानी सोल एनर्जी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। अभी और थोड़ा डेप्थ में देखें तो ये जो माइंड एंड ब्रेन है वो दोनों अलग है। तो देखिए मन और बुद्धि, ये मन जो है वो सॉफ्टवेयर का कार्य करती है, और ये ब्रेन यानी कि हार्डवेयर का, जो शरीर का बनता है, साइंस के शरीर का। इसीलिए यहाँ लिखा है इट इज अ फिजिकल पार्ट एंड दिस इज मेटाफिजिकल। और ये जो है वो एक माइंड जो है वो पूरा एक सोल एनर्जी का है, तो उसको मन बुद्धि संस्कार यहाँ बताया गया है। मन बुद्धि एंड संस्कार, इम्प्रेशन, ये तीनों से बनता है। और ये जो है हमारा हार्डवेयर जो है वो 2% ऑफ बॉडी वेट जितना होता है। यहाँ देखें ये जो हमारी सोल एनर्जी है ना वो कैसे काम करती है। तो जैसे मन है वो थॉट सिस्टम, यानी 3 सिस्टम है। उसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि थॉट सिस्टम है वो कॉन्शियस माइंड है, यानी जो हम देखते हैं 5 कर्मेंद्रियां, जिसे हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, है ना, सुनते हैं, तो ये सभी कर्मेंद्रियां जो हमारी है ये कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसमें हमारा ज्यादातर ध्यान नहीं जाता है। और कंट्रोल सिस्टम यानी कि इंटेलेक्ट वो बुद्धि का कार्य करती है। तो हमको ये जब इवेल्युएशन में हम आते हैं तभी हमारा थोड़ा विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है और इमोशंस बनने लगता है, और तभी ये मेमोरी बन जाता है। जैसे बैंक में हर रोज डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में खासी अमाउंट मतलब एक अच्छी अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है। ऐसे ही हमारे आत्मा में ये मेमोरी का पार्ट बहुत जबरदस्त है। और इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जब बच्चा शरीर मतलब कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो जितना भी अपने संस्कार ले जाता है, मेमोरी में जितनी भी है चीजें सबकॉन्शियस माइंड में, वो लेकर नए बर्थ में आता है। तो इसका बहुत महत्व है। हम और थोड़ा देखें तो जैसे ब्रेन की बात कर रहे थे, तो ब्रेन जो है वो हमारा हेड ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, भाषा क्या समझते हैं। तो हमारे ब्रेन में 2 पार्ट हैं, एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, यानी कि एक इमेज म्यूजिक क्रिएटिविटी का ये सब पार्ट है। और जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल होता है, यानी मस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं इसे। तो ये लेफ्ट ब्रेन का यूज तो हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तब हम काफी अच्छे से करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ से हमारा एक नाता छूट जाता है। तो अभी हम इमेज म्यूजिक कलर आर्ट और ये सब में अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी हमारी मेमोरी भी बन सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि हमारी एनर्जी सोल, ये जो है सोल, उसमें 7 गुण समाये हुए हैं। मतलब हमारी फीलिंग जो होती है ना उस वो गुण से होती है। तो ये जो गुण कौन सा है? प्योरिटी, पावर, लव, पीस, हैप्पीनेस, विजडम एंड ब्लिस। और हम जब ये आत्मा को महसूस करते हैं, यानी कि ये सब पावर्स को, ये गुण को महसूस करते हैं, तभी हम सुप्रीम पावर को भी महसूस कर सकते हैं। और जब निराकार परमात्मा को हम महसूस करके एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी लेते हैं, तो बायो इलेक्ट्रिक
हमारी जो एक शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जैसे लाइट होती है ना घर में, उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जब डिस्ट्रॉय होती है मतलब पूरी खत्म हो जाती है, तब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, वो शक्ति निकल जाती है और दूसरा एक शरीर लेती है, मतलब दूसरे एक चोला लेती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक स्टेज है, वो अगर हम महसूस करते हैं तो बहुत अच्छे से हम हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है, यानी कि रेज योर वाइब्स रेज योर इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। तो हम दो चीजों के लिए अभी बहुत जरूरी है, एक तो जो हमारा डिसीज है उसको हम क्योर कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, और दूसरा है हमारा जो पेंडेमिक अभी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें हम कैसे सोचे, है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो इमोशंस है, वाइब्रेशंस ऑफ इमोशंस, ये बहुत सुंदर है। एक डॉक्टर के पास से मैंने सीखा था ये चीज, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि जब हम गिल्ट में होते हैं या थोड़ी शर्म में होते हैं, तो 100 से नीचे हमारी वाइब्रेशन की एनर्जी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे फियर भी है, तो वो लो वाइब्रेशंस में आ जाती है। तो जितना फियर में हम, कोई भी प्रकार के फियर आता है, और दिन में कहते हैं 4 से 6 स्ट्रोक्स आता ही आता है मिनिमम, तो ये फियर वाला है ना, वो लो फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं हमको। और जैसे एंगर आता है, इरिटेशन आता है पहले, फिर एंगर आता है, तो ये 150 एनर्जी लेवल उसका हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। फिर हम धीरज नहीं रहते हैं, है ना, कहीं कोई कार्य लेके बैठते हैं और फिर नहीं नहीं ये तो होना चाहिए, ये कल हो जाना चाहिए, तो हमारी इमोशंस में वो असर होता है, और तभी हमारा इम्पेशंस जो होता है ना, वो भी फ्रीक्वेंसी हमारी डाउन करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये जो डाउन वाला है ना, तो ये बहुत मतलब हमको नीचे ले आते हैं हमारी एनर्जी को। जैसे 400 है, तो उसमें भी ऑप्टिमिज्म, हाँ हम कुछ अच्छा होगा ऐसा हम सोचते हैं, तो हम 400 में आ जाते हैं। तो ऐसे करके जब हम 1000, यानी कि यहाँ बताया है 1000 एनर्जी लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, यानी कि मैं आत्मा और परमात्मा से जुड़ गई हूँ। तो आप देखिए सीधा आप ऊपर, है ना, जंप लगा दिया, हाई जंप ले गए, तो ऐसे कहते हैं कि हम उड़ने लगते हैं, तो वो 1000 में आ जाते हैं। और 900 इज ग्रेटिट्यूड, यानी कि मैं तो यहाँ कहूंगी कि हम यहीं रहना चाहिए, कि हम जब भी चाहे नीचे आए, कर्म करें और वापस ऊपर चले जाए, यानी कि सोल कॉन्शियस में रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमको कुछ देखना नहीं है, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी हमको ध्यान रखनी है। तो ये बहुत सुंदर चार्ट है फ्रीक्वेंसी का, कि जितना हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे, हमारी हाई फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी। कार्य किया और वापस चले गए। और दूसरा है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड करेंगे, अभी बहुत जरूरत है 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड करने का, है ना। तो ग्रैटिट्यूड करेंगे तो भी 900 एनर्जी लेवल आ सकता है, फ्रीक्वेंसी लेवल। अभी हमने शक्ति की बात कर ली। अभी देखिए व्हाट इज बॉडी, शरीर क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो 5 एलिमेंट है, उसी का ये शरीर बनता है। यस, तो ये शरीर में एनर्जी, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको हम कैसे कार्य में लाए। तो जैसे ये जो ब्रेन बताया है, वो हेड ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। तो कंप्यूटर बनाया किसने, ये ब्रेन ने तो बनाया। तो हु इज मास्टर, ये ब्रेन मास्टर है ना। लेकिन हमने वो राइट ब्रेन का यूज धीरे धीरे छोड़ दिया, इसीलिए किसी किसी ने जो यूज किया है राइट ब्रेन का, वो ही बहुत आगे गए हैं। तो क्रिएटिविटी में इसका बहुत रोल है। स्टमक है, वो मिक्सिंग का काम करता है। ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, तो हमारे जो हीलिंग प्रोसेस है ना, उसमें बहुत मदद मिलेगी। ये जैसे एक छोटी इंटेस्टाइन है, वो फूड प्रोसेसर का काम करता है, यानी न्यूट्रिशन का काम करेगा। जैसे ये वाटर पंप, ये हार्ट जो बताया है, वो वाटर पंप जैसा काम करता है। आई है, वो कैमरा की तरह काम करता है। ये देखिए किडनी वाटर प्योरीफायर, जो प्योरीफायर होता है ना, उस तरीके से हमारे शरीर में वो प्योरिफिकेशन का काम करता है। कान सुनता है, और बड़ी आंत जो है वो डस्टबिन का काम करती है। एंड ये वाला लंग्स है ना, तो वो फ्लोर का काम करता है। अभी लंग्स का भी हमको बहुत ध्यान रखना है। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ अगर मेडिटेशन करते हैं, तो वो एनर्जी लेवल हमारी बढ़ती है, और वो खुद जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको वो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, और तभी एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा कलरफुल पिक्चर भी बताया है इसमें।
यहाँ देखिए, यस, तो ये हम है कौन? ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन है तो जैसे यहाँ ईंट बताई है ना, ब्रिक्स है, तो वो सेल से शुरू होता है और फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन्स बनता है, फिर हमारा पूरा शरीर बनता है। और ये शरीर चलता किससे है? ये एनर्जी। एनर्जी क्या है? इटर्नल है। ये एनर्जी लाइक का एक हाउस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे होता है ना, तो ऐसे ही हमारे शरीर में ये एनर्जी एक लाइट का काम कर रही है। तो ये बहुत सुंदर है कि जब जितना हम मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू शुरू में बैठक या योग कहते हैं हम, तो बैठकर हम थोड़ा सा करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आप नेचुरल नेचर में आ जाएंगे, चलते फिरते भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत सुंदर है। अभी हीलिंग प्रोसेस का शुरू हो रहा है ना। तो ये आप देखिए 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी कि चक्रास हैं। तो वो इमोशनल एमसीबी भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे बड़ा घर है, इसमें एमसीबी 3-4 लगाई होती हुई है, तो वो एक एरिया डिफाइन करता है कि इस एरिया में इतना कनेक्शन जा रहा है, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बाकी का एमसीबी जो है वो ठीक रहेगा। तो उस तरीके से हम ये सातों 7 चक्रों को अभी हम एक्टिवेट करेंगे, एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करेंगे। अभी और देखिए, जैसे यहाँ 7 कोर वैल्यूज दिखाई है, तो 7 कोर वैल्यूज क्या है? वर्च्यूज है, ब्लीस है, हमारी नॉलेज है, ट्रूथ है ना, ये पीस है। तो ये सब जो है, यहाँ देखिए लव है, तो ये जो है वो हमारी 7 कोर वैल्यूज, यानी कि आत्मा की ये सातों गुण है अलग अलग। और इसमें से यहाँ ये पीपीटी में 4 आया है। ये कलर्स है, क्योंकि कलर की भी एक फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ देखिए ये जो है एनर्जी सेंटर है, क्राउन चक्र है, आज्ञा चक्र है ना, हार्ट चक्र है, और ये है थ्रॉट चक्र। तो ऐसे ही हमारे बाकी के 3 जो देखे, जॉय एंड हैप्पीनेस है, प्योरिटी है, पावर है। तो ये जो 7 कोर वैल्यूज है, ये 7 एनर्जी सेंटर्स है, और ये विबग्योर का पार्ट है, यानी कि कलर की फ्रीक्वेंसी है ना। तो रेड कलर की भी फ्रीक्वेंसी है, 400 से लेके 750 तक का पूरा ये विबग्योर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 से लेके 732 ट्रिलियन हर्ट्ज, यानी करोड़ों में है। और एक एक जो वैल्यू है हमारी, वो एक एक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत वंडरफुल ये मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन है। वो जैसे मैं कहूंगी कि ये एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, इसीलिए ये बहुत सुंदर उपयोगी है। और अभी के समय में जितना भी आप कम मेहनत में ज्यादा फायदा पाएंगे। तो जैसे यहाँ बताया, ये लाइट का शरीर है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा आभा मंडल जो है ना, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ ओरा हो सकता है। आभा मंडल यानी ओरा। और ये आज्ञा चक्र यानी दोनों आईब्रोज के बीच में जो है एनर्जी सेंटर, वो यहाँ दिया गया है। तो ये आज्ञा चक्र को हमको एक्टिवेट करना है। जैसे फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रही थी, तो ये इंडिगो कलर है, उसकी 695 ट्रिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और उसकी वैल्यू, कोर वैल्यू जो है, आई एम अ ट्रूथफुल सोल। एनर्जी फ्लो जो है वो अभी बहुत थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे तो बैलेंस होता है। किससे होता है? तो हमारी जो ट्रूथ यानी सत्य स्वरूप। तो सत्य कौन सा? ये सत्य है नॉलेज का। कौन सा नॉलेज? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। वो लाइट अंदर, अभी एक और पिक्चर में आपको दिखाऊंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो वो जो अंदर लाइट है, एक शक्ति का अनुभव है, वो पूरा समझना है। साथ में परमात्मा शक्ति है, तो दूसरा बिंदु हुआ। और तीसरा बिंदु, 3 बिंदु ही याद रखना है और कुछ नहीं है। ड्रामा बिंदु, यानी कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो बस एक देखना है, एक्सेप्ट करना है, और उसमें हमको ईश्वर का साथ का अनुभव करते करते हमारा कार्य क्षेत्र में कर्म करना है। तो हमारा कर्म बंधन कम होता जाएगा। हम कर्म को सुकर्म में तो शायद ही नहीं बदल पाएंगे अभी, क्योंकि बहुत एक एनवायरनमेंट ऐसा है, लेकिन कर्म अकर्म जरूर बन सकता है अगर हम ईश्वर का साथ का अनुभव करते हैं। और वो अगर नहीं हुआ, एक चक्र थोड़ा इम्बैलेंस है, तो फियर वरीज आ जाती है। और फियर वरीज का आपने देखा है इमोशनल चार्ट में कि 100 फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी का आज आप और कुछ लेके जाए ना जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी का हमको अटेंशन देना है, वो जरूर आप लेके जाइए। यहाँ मुझे याद आ रहा है, बॉम्बे से एक पेशेंट तो नहीं कहूंगी, एक थोड़ा सा सिचुएशन वाली आत्मा मेरे साथ बात कर रही थी। बैंक में 10 साल से उन्होंने काम कर रही है अभी वो। और वो बहन ने बहुत विचार चल रहे थे,
तो उन्होंने आज्ञा चक्र और ये क्राउन चक्र दोनों को एक्टिवेट कर लिया और बहुत अच्छे से अभी जैसे विचारों से मुक्त हो रही है कि हाँ ठीक है, थोड़ा जो करना जरूरी है वो ही करना है। तो बहुत ज्यादा जब हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता है तभी ये दोनों चक्र, ये आज्ञा चक्र एंड क्राउन चक्र दोनों अभी हलचल में आ जाता है। तो देखिए आज्ञा चक्र का हलचल क्या आता है, हेडेक, माइग्रेन, आई प्रॉब्लम, इससे नर्वस सिस्टम जो है हमारी पूरी यहाँ रिलेटेड है। ये चीज बहुत सुंदर है। हीलिंग डॉक्टर्स यानी हम खुद के डॉक्टर्स, जो हमारे मेडिकल क्षेत्र में भाई बहने हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे, बहुत प्यारे मीठे भाई बहन हैं, अभी बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, वो हमको ट्रीट कर रहे हैं, है ना। और जब हम क्योर होते हैं तो क्योर जब लास्ट स्टेज में ऐसा होता है कि क्या होगा, तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, क्योर वो करेगा यानी कि ईश्वर करेगा। तो स्पिरिचुअल एनर्जी हम खुद अभी हम लेना सीख जाए तो ये हीलिंग डॉक्टर्स हमारे अंदर है। तो आज्ञा चक्र का जो ये एनर्जी सेंटर का जो है वो डॉक्टर्स कौन सा है, तो साइकोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जुड़ी हुई है, डेंटिस्ट भी यहाँ है और आंख के डॉक्टर, ऑप्थोमोलॉजिस्ट भी हैं। ये हुआ क्राउन चक्र यानी कि दूसरा हमारा एनर्जी सेंटर। तो ये देखिए क्राउन चक्र जो है वो पूरा यहाँ सिर के ऊपर सेंटर में है और उसकी कोर वैल्यू क्या है, ब्लिस। आई एम अ ब्लिसफुल सोल। जितना आप ब्लिसफुल का एक अफर्मेशन का भी यूज करेंगे और अनुभव करेंगे, उतना आपको बहुत अच्छे से उसका यूज कर पाएंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए हाईएस्ट है 732 ट्रिलियन हर्ट्ज, करोड़ों में। कलर की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये कलर की फ्रीक्वेंसी के बात है, 732 ट्रिलियन हर्ट्ज वायोलेट कलर की। अभी देखिए क्राउन चक्र जो है वो कहाँ काम करता है, मतलब वो जो एरिया है ना, तो वो हमारे शरीर में कहाँ तक काम कर सकता है। तो जैसे वो एरिया तो ऊपर का है लेकिन वो हमारी सिस्टम से जुड़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ऊपर में हमारी एक पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम का महत्व का इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और पीनियल ग्लैंड है वो हमको कहते हैं कि नींद आनी है, नींद अगर अच्छे से आए, है ना, डेल्टा स्लीप अगर थोड़ी ठीक से आए तो ये पीनियल ग्लैंड उसमें मदद करती है। और इसीलिए जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था हैप्पीनेस वाला, उसमें डॉक्टर सचिन ब्राता जी ने बताया था कि 4 हार्मोन्स बहुत जरूरी है, DOSC हैप्पी हार्मोन्स, है ना, डोपामाइन, एंडोर्फिन। तो ऐसे 4 हार्मोन्स जो है वो अगर ठीक से होता है तो बहुत अच्छे से नींद भी आती है और ये हमारा ग्लैंड है ना वो भी बहुत अच्छे से कार्य करता है। फिर थ्रॉट में आता है थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हार्ट में आती है और फिर यहाँ एड्रिनल ग्लैंड भी आती है, वो किडनी के ऊपर आती है और बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज आती है। तो आप देखिए कि जब भी आप सोचेंगे कि ये इनको थायराइड का प्रॉब्लम है, इनको डाइजेस्टिव यानी कि पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है, इंसुलिन का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का है तो थाइमस ग्लैंड आई, डाइजेस्टिव आया तो पैनक्रियाज आई। तो ऐसे ऐसे जब ये होता है ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस। यहाँ एक चीज मुझे इतने समय के बाद, मुझे भी थायराइड था और थायराइड मैंने रिवर्स किया है, 18 साल पुराना थायराइड। अभी लास्ट वीक भी मैंने फिर से रिपोर्ट कराया, 2 साल पहले मैंने रिवर्स किया, फिर मैं बीच बीच में रिपोर्ट कराती गई, अभी 1 वीक पहले का भी कराया, 2 साल से मैं नो मेडिसिन। तो ये बहुत कुदरत का करिश्मा है, हम कुछ नहीं है, हमको पुरुषार्थ करना है बस। तो देखिए ये जो ये सिस्टम है ना वो भी मैंने अभी 2 साल में ही ये सब कुछ समझी हूँ। तो आपका तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा ये भाग्य बन गया है कि अभी आपको कोई समझा रहा है। मुझे तो कुछ ही समझ में नहीं आया था, 18 साल थायराइड मैंने लेके चली थी। तो कहने का है कि ये थोड़ा सा समझ के हम हीलिंग मेडिटेशन का यूज करेंगे तो हम हमारे डिसीज पर कंट्रोल पाएंगे और रिवर्स भी कर सकते हैं। और फिर आता है टेस्टिस एंड ओवरीज, ओवरीज फीमेल में होती है, टेस्टिस मेल में होती है। तो ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का है। तो क्राउन चक्र इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड एनर्जी सेंटर बैलेंस होने से ये बहुत ब्लिसफुल, मतलब एक आनंद का हम अनुभूति कर सकते हैं और ग्रेटिट्यूड भी रहता है। वैसे इसका इम्बैलेंस कोई ऑपोजिट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम असंतुष्ट बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, तो ये चक्र एक्टिवेशन ठीक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। डिसीज भी थोड़ा बहुत आपको पता है, एपिलेप्सी होती है, मेमोरी पावर का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे है और पीनियल ग्लैंड यहाँ पीछे है ना। तो जब आज्ञा चक्र का करते हैं तो ये पीनियल ग्लैंड है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। क्राउन चक्र का करते हैं तो ये हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस की एक बात और मैं बताऊं तो शायद टाइम में 5-7 मिनट हरित भाई थोड़ा सा मुझे हो सके तो देना, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस है ना ये इतना सुंदर रीति से काम करता है। मैंने भी जब एक्सपेरिमेंट किया ना तब मुझे पता चला कि जो हम सोचते हैं वो सोच जो होती है ना हमारा थॉट्स वो निराकार होता है और जैसे ही हमारे अंदर जाता है ना तो वो हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी वंडरफुल बात है। वो मैंने सीखी, हमारे डॉक्टर हंसा दीदी है, ब्रह्मा कुमारी है, ह्यूस्टन में है और उनके पास बहुत सारे अनुभव है ऐसे मन की शक्ति के ऊपर का। तो वो वहाँ की यूएसए में आर्मी के उसमें जॉब किया है, डॉक्टर हंसा रावल, ह्यूस्टन ब्रह्मा कुमारीज, आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं वो। तो उन्होंने जब समझाया तब मुझे बहुत क्लियर हुआ कि हाँ ये तो इसी के कारण हुआ है। तो हाइपोथैलेमस जो है ना वो एक हार्मोन्स रिलीज करता है, एंडोक्राइन सिस्टम पूरी उसमें जाती है तो वहां से वो रिलीज होता है, जिसको जितना जरूरत है वहां से होता है। और जब हम आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करते हैं तभी हम हाइपोथैलेमस को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं। और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम राजा कहते हैं, वो ब्रेन को मतलब अच्छे से वो ब्रेन है ना वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ए पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यस, अभी और थोड़ा आगे देखें, थोड़ा मैं स्पीड में भी लेती हूँ रहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से ये जो है ना आपको काफी कुछ यस ये जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन सा है, तो आपको पता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब इसमें डायबिटीज के डॉक्टर भी यहाँ आ जाता है, डायबिटोलॉजिस्ट है ना। तो हमारा जिसको भी प्रोफेशनल को ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है वो मैंने देखा है। तो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कितनी करनी है, 10-10 मिनट ही करनी है, वो आगे मैं समझाऊंगी। तो ज्यादा नहीं, सुबह शाम आप कर लो और बहुत अच्छे से फिट रह सकते हैं। अच्छा, तीसरा है स्काई ब्लू कलर थ्रॉट चक्र। तो उसमें हमने बताया था थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन का एक भाग थायराइड ग्लैंड है ना, तो वहाँ एक्टिवेशन करना है। ये लाइट का शरीर है ना, ये खास आप थोड़ा अभी तो चित्र देखा है तो काफी याद भी रह जाएगा, यहाँ गले में, ठीक है। और उसकी ये जो हमारी कोर वैल्यू है वो क्या है, पीस। तो हम शांति का अनुभव करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाती है, 700, 600, 700 मतलब 600 अबव। तो आप देखिए अगर फियर आता है तो 100 फ्रीक्वेंसी हो जाती है, शांति आती है तो 600, 700। तो हम भले एक्सरसाइज जरूर करना है, फिजिकल फिट भी रहना है, लेकिन लास्ट में अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे ना तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वो शरीर का जो है ना वो हैप्पी हार्मोन्स जरूर रिलीज करता है, लेकिन हमारी जो मन की सोच की जो फ्रीक्वेंसी है इमोशंस वाली वो हमारी मेडिटेशन से आएगी। और यहाँ जो ऑर्गन्स रिलेटेड है वो है, ये गले का जो थायराइड ग्लैंड है वो, नोज भी यहाँ एरिया में आ जाता है और ईयर, यानी ईएनटी जो है ये ईएनटी का काम करेगा। और साथ साथ में देखें तो हमारी पीस जो है वो फीलिंग है तो बहुत अच्छा है, बैलेंस रहेगा। अदरवाइज उसका ऑपोजिट ईगो स्ट्रेस वगैरह आता है। तो प्रोफेशनल के हिसाब से मैं देखूं तो हमको स्ट्रेस भी ज्यादा आता है, लेकिन हमको शायद कभी रियलाइज भी थोड़ा बहुत आता है, जब थोड़ा ऊपर हो जाता है ना तभी आ जाता है। तो अगर मेडिटेशन की आदत थोड़ी थोड़ी अगर शुरू कर देते हैं तो ये फर्क भी आएगा। जैसे ये विशुद्धि चक्र यानी कि हार्ट चक्र, अरे थ्रॉट चक्र की ही बात है, उसमें जो अच्छी एक बात है वो है ये 3 एनर्जी लेयर, यानी कि 3 एनर्जी यहाँ गले में साथ में है। एक फिजिकल एनर्जी तो होती है, रिजर्व एनर्जी, या दिस इज वेरी वंडरफुल डिफेंस मैकेनिज्म। कई बार हमने अनुभव किया है कि गैस के पास अगर हम हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है और अचानक से हमको वो आग के पास हमारा हाथ पहुंचता है और तुरंत हम ले लेते हैं, तो वो वहाँ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व एनर्जी। मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। ये तीनों एनर्जी है वो बहुत सुंदर तरीके से वहाँ गले में काम करती है, इसीलिए उसको कहते हैं दिल से दिमाग तक जो पार्ट है ना ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सोचना तो है ही, लेकिन वो जैसे एक हमारा नीचे का प्राणमय कोश है, ये ऊपर का जो है ना, अरे सॉरी, ऊपर का जो है प्राणमय कोश है, नीचे का अन्नमय है। तो ऊपर का हमारा प्राण यानी कि एनर्जी, तो दिल से दिमाग तक हमारी पूरी एक स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है।
और एक अच्छा सा जो हीलिंग डॉक्टर यहाँ है वो कौन है, स्पीच थेरापिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट। स्पीच का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ ठीक हो जाता है। आज के ही एक डॉक्टर बीके सूरज भाई करके हैं, ब्रह्मा कुमारीज में, माउंट आबू में। ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, मतलब आत्मा भी इतनी पावरफुल है, आप जरूर उनको सुनिए। उनके पास इतना सारा अनुभव का खजाना है, बहुत अच्छे पेशेंट अच्छे अच्छे हो गए हैं। तो जिनको मतलब आंख का भी प्रॉब्लम है, तो उनकी आंख 2 साल 4 साल के बाद फिर से उनका विजन वापस आ गया। और गले में भी जो हकलाते हैं ना, बोलने में भी, वो भी बहुत अच्छे से अभी स्पीच देते हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभव उनके पास भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ मिरेकल ऑफ मेडिटेशन ही है कि स्पिरिचुअल एनर्जी को आप जितना आप अपने आप में लेंगे और उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। अभी एक चौथा आया एनर्जी सेंटर, हार्ट चक्र, यानी दिल से दिमाग तक। तो ये दिल तक हम आ चुके हैं, लवफुल है ना, उसका है लव। तो हम क्या करेंगे, तो लव में जो हमारी ये सिस्टम जुड़ी हुई है वो है सर्कुलेशन एंड ये जो है रेस्पिरेटरी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमको पता है, हम सांस भी लेते हैं, फेफड़े वगैरह। तो ये सब सिस्टम जो है वो वहां से रिलेटेड वो एरिया में है, तो उसको भी हमको एक्टिवेट करना चाहिए। और उसके साथ जो हमारी ये कोर वैल्यू क्या है, लव है, कंपैशन है, करुणा है ना। और लव कौन सा, अनकंडीशनल। जब हमारा कोई भी अपेक्षा वगैरह का लव होता है, वो अनकंडीशनल लव, तभी हमको ये बहुत यहाँ सुकून मिलता है ना। इसीलिए कहते हैं कि मैं दिल से कहती हूँ, मैं दिल से कहता हूँ। तो ये बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है अगर हम यहाँ थोड़ा सा, तो ब्लड प्रेशर भी होता है। और काफी आत्माओं को जैसे ब्लड प्रेशर हुआ तो फिर हार्ट प्रॉब्लम भी आती है ना। तो अगर हम शुरू में ही इसको थोड़ा अलर्ट होके ध्यान देंगे और थोड़ा अपने लिए समय निकालें, है ना। हमको नाम मान शान का एक मोह रहता है, हम करना भी चाहिए, लेकिन क्या, कहाँ तक, पैसा भी कमाना है। हम जो भी डिग्री अभी जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें सीए के साथ भी उनके फैमिली फ्रेंड्स भी एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो मैं सबके लिए बोलूंगी कि हम जरूर करें। कार्य क्षेत्र में आने के बाद तो हमको करना ही है, ये कोई कर्म संन्यास की बात नहीं है, हमको कर्म क्षेत्र में रह के करना है, लेकिन बहुत सुकून से करना है। एक नेचुरल नेचर बनानी है कि मैं क्या हूँ, मैं एक सोल एनर्जी हूँ। और वो धीरे धीरे आपका इतना अच्छा नेचुरल नेचर बन जाएगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस लेवल आएगा और उसी से ही हमको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ट डिसीज और ब्लड प्रेशर, ऑटोइम्यून डिसीज वगैरह में से हम बाहर आएंगे। काफी बहनों को ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, क्योंकि वो अपनी जो भावनाएं है ना, वो दबा के रखते हैं, स्ट्रेस आता है और फिर ये सब चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा और अभी आगे जाएंगे। देखिए, हीलिंग डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट। कई बार होता है डायबिटीज हुआ तो फिर कोई बात नहीं, गोली ले लेते हैं, इंसुलिन भी लेंगे, लेकिन फिर होता है ब्लड प्रेशर की गोली, उसके बाद हार्ट की गोली। हमने डॉक्टर्स को भी देखा है, कई डॉक्टर्स को वो जानते भी हैं, लेकिन प्रायोरिटीज भी सेट करनी है ना। तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगी। एक बार लक्ष्य लिया, ईश्वर को समर्पित किया कि नहीं मुझे ये करना है, आप मेरे साथ हैं। उसमें एक छोटा सा अनुभव मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे रात को अलार्म नहीं लगाती हूँ, बाबा यानी कि परमात्मा को हम बाबा कहते हैं, तो बाबा मुझे इतने बजे उठा देना है। तो सुबह 3:30 4 बजे जो भी जितने बजे उठना है, उठ के मेडिटेशन करते हैं। तो ये बहुत, मेडिटेशन क्या है, प्रेयर में हम थोड़ा बहुत भगवान ये कर देना ऐसा कहते हैं, लेकिन मेडिटेशन में हम हक से परमात्मा से बात करते हैं। कौन सी, बाबा मेरा पिता है, वो मैं उनकी बच्ची हूँ, आत्मा बच्ची हूँ, और मैं बात करूंगी, आत्मा बच्चा हूँ। तो मैं बात करूंगी कि आज देखिए मुझे इतना इतना प्लानिंग है, इतना इतना प्रोग्राम्स है, मुझे ये करना है, लेकिन मैंने आपको दे दिया, अभी आपको संभालना है, मुझे याद भी कराना है और मेरे साथ भी रहना है। और देखिए उसकी कमाल। और रात को भी वही चीज करनी है, सोने से पहले 10-15 मिनट मौन साइलेंस में चले जाइए, कुछ बात नहीं करनी है। मौन यानी कि मोबाइल का, मुख का भी मौन और हमारे विचारों का भी मौन। ऐसे करके आप 10-15 मिनट भी लास्ट में अगर ये करेंगे तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और वो साइलेंस पीरियड में आपको
भगवान के साथ यानी कि निराकार परमात्मा से आत्मा बनकर बात करनी है। बाबा मैंने आज इतना इतना किया, इतनी दिक्कत आई, लेकिन मुझे पता है वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अभी ये वाला देख रहे हैं हम येलो कलर, यानी कि सॉरी ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना हमारी काफी भाई बहनों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो उसका एक वैल्यू है जॉयफुलनेस यानी जॉय। ठीक है, तो यहाँ हमारी ऑर्गन सिस्टम हमको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और साथ साथ में पैनक्रियास, ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम वाली जो ग्लैंड्स होती है ना सब, तो उसमें से यहाँ आई पैनक्रियास। तो पैनक्रियास को हमको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है, साथ साथ में सभी ऑर्गन्स का भी। तो अगर खुश रहेंगे, हैप्पीनेस आएगी हमारे में, तो ये 500 से ऊपर चला जाएगा हमारा वो फ्रीक्वेंसी लेवल, ठीक है, इमोशंस वाला। तो यहाँ अगर हम एंगर करेंगे तो क्या आएगा, 150 तक नीचे आ जाएंगे। तो हम तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को अभी बात करूंगी, तो हम तो ये डबल बेनिफिट, हम प्रॉफिटेबल बिजनेस वाले हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। तो हम जरूर हम यहाँ अपना 150 वाला नहीं जाएंगे, 500 से ऊपर में जाएंगे। ठीक है अंजलि बहन, बराबर है ना? ठीक है, यहाँ जो डिसीज बराबर है, बराबर है। अभी लगता है क्योंकि मुझे थोड़े समय में पूरा करना है और बहुत सारा ऐसा लगता है ना कि खजाना लुटाए, तो इसीलिए हाँ ठीक है, ये डिसीज के बारे में तो काफी कुछ हमको पता ही होता है। हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं, हीलिंग डॉक्टर्स। ठीक है, तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, गैस एसिडिटी वाला भी वही प्रॉब्लम हो जाता है। या दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, इसकी फ्रीक्वेंसी 472 ट्रिलियन हर्ट्ज है, और उसका जो है प्योरिटी, कोई भी हमारा जो गुण है ना वो प्योरिटी से शुरू होता है। प्योरिटी यानी शरीर की नहीं, नॉट ओनली तन, मन वचन कर्म की, यानी सूक्ष्म में, और वो इतना सुंदर है, उसके लिए हम कंटिन्यूस अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज हमने एक रिजल्ट ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया। मन वचन कर्म क्यों? क्योंकि जो मन की शक्ति है ना वो हमारे विचारों के साथ जुड़ी हुई है, और वो कैसे काम करती है, तो वो संस्कार यानी मेमोरी पावर। तो डीएनए ऑफ मेमोरी कैन बी चेंज, हम कर सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग टॉपिक होता है और वो बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, लेकिन मेमोरी बहुत असर करती है। तो यस, हम प्योरिटी की बात कर रहे थे, और ये देखो ये जो किडनी है ना उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड आती है, तो एंडोक्राइन का जो एड्रिनल ग्लैंड वाला जो भाग है ना वो यहाँ आता है, यानी कि हार्मोन्स वाला। ये थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है तो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है किडनी की, उसको कहते हैं कि वो कचरा निकालती है, प्योरिफिकेशन का काम करती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे ही आती है। और थोड़ा और हम आगे जाए तो मतलब हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन का जो काम है ना वो थोड़ा यहाँ भी एड्रिनल ग्लैंड के पास भी, किडनीज वगैरह भी वो काम में आ सकती है यहाँ पे। तो उसका जो एनर्जी सेंटर हमने बताया था स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, तो इस स्वादिष्ठान चक्र में प्योरिटी, जब चक्र ये एनर्जी सेंटर हमारा बैलेंस होता है तो हमारा बहुत अच्छे से एनर्जी फ्लो करता है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ आई तो क्या होता है, तो वो एक फियर होता है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी यानी क्या, हमारा अटैचमेंट होता है, बच्चों से होता है, संबंध संपर्क से होता है, स्थान से होता है, हमारा कार्य से भी होता है ना। हमने इतना बड़ा ऑफिस किया, इतनी ऑफिस है, अभी और बड़ा किया, ये हुआ, ये स्टाफ हुआ, मतलब एक पैंडेमिक सिचुएशन में भी ये सब फैक्टर्स कार्य कर रहे हैं। तो अभी अगर हम फियर को निकाल दें, है ना, निकाल दे मतलब क्या, हम फियर को ओवरकम करें, कोई बात नहीं, हमारा एक कर्म के हिसाब से जो भी हो रहा है ओके, लेकिन हम और करेंगे। और उसके लिए अगर परमात्मा के साथ का अनुभव करते करते हम कार्य करेंगे तो टचिंग एंड कैचिंग पावर हमारी बढ़ेगी, उससे हमारा बहुत फायदा होगा। और वो ही एक ऑलमाइटी गॉड है जो हमको रास्ता बता सकता है। और लॉकडाउन इससे अच्छा एक एक्सपेरिमेंट बोलो या तो एक्सपीरियंस बोलो, हमारे सिवा कोई नहीं जानता है कि ये लॉकडाउन ही ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। लास्ट ईयर जो देखा पूरे वर्ल्ड में पूरे लॉकडाउन था, तो ये क्या था, कोई एक मनुष्य की ताकत है क्या ये कर सकता है, नहीं, ये ईश्वर ही है। तो ईश्वर का एक ड्रामा बहुत परफेक्टली चल रहा है। इसीलिए हम जो हर रोज ब्रह्मा कुमारीज में जो सीखते हैं वो है मुरली, महावाक्य होते हैं। आप कोई पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल में चले जाइए
या तो बीके शिवानी बहन को सुनिए, जहां भी जिसको भी आपको अच्छा लगता है ना, वो सुनेंगे तो पता चलेगा कर्म का हिसाब किताब। तो हर रोज डेली मुरली वर्जन आता है, उससे हम बहुत अच्छे के जैसे आने वाली कोई सिचुएशन होती है तो मुरली में हमको एक टचिंग होता है कि हाँ हमको ये ध्यान रखना है। तो ये फियर होता है ना, वो फियर को हम, ये फ्रीक्वेंसी को हम धीरे धीरे जैसे ओवरकम कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो कैसे कार्य करता है। तो प्योरिटी है तो वो क्रिएटिव थिंकिंग तो आनी ही है, अदरवाइज क्या होता है नेगेटिव थॉट्स चलता है। पॉजिटिवनेस मैंने बताया ना, हमारे बच्चों का मोह होता है, जनरली मदर को ज्यादा होता है, या तो ऑफिस का वगैरह, जो एक पॉजिटिवनेस होता है। तो और उसकी वजह से क्या होता है, ये सारे देखिए ये कितने डिसीज। और किडनी का तो हमको पता है, पहले किडनी डायलिसिस का हमने सुना नहीं था, लेकिन अभी के समय में बहुत हम सुन रहे हैं। और ये एक खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि एक सुकून की बात है कि हम निमित्त बने, फाल्गुनी निमित्त बने। एक आत्मा को किडनी का प्रॉब्लम था, डायलिसिस 8.5 से क्रिएटिनाइन 4.5 तक वो आ गए थे। तो कहने का भाव है कि हम सेवा अगर करते हैं तो हमारी वो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ऊपर ही ऊपर चली जाती है, मतलब 600 प्लस में, 700 प्लस में, यानी कि एनलाइटन मोड में आ जाती है। तो हम किसी और के लिए नहीं करते हैं, जब भी हम सेवा करते हैं तो किसके लिए करते हैं, हम खुद की आत्मा के लिए करते हैं, हर कोई आत्मा। और क्योंकि उसी की वजह से उनका जो एक बैलेंस होता है सोल एनर्जी का, वो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ कितने सारे डॉक्टर्स हैं, हीलिंग डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी डायलिसिस वाले, गायनेकोलॉजिस्ट क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, काफी बहनों को सिस्ट वगैरह भी होता है, तो ये यहाँ काम करता है। प्योरिटी वाला चक्र हम जितना एक्टिवेट करेंगे उतना यहाँ फायदा मिलेगा। इम्यूनोलॉजिस्ट, अभी के समय की ये सिचुएशन है, इम्यून सिस्टम हमारी कम है, ये है वो है, तो यहाँ एक चक्र बहुत अच्छे से मदद रूप हो सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन का प्रॉब्लम, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड प्योरीफाई करना बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए कहते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी वहाँ काम करता है। एंड लास्ट वाला है रेड कलर। तो रेड कलर जो है वो मूलाधार चक्र यानी बिल्कुल लास्ट में, स्पाइनल कोड के लास्ट में होता है, और ये इट इज रिलेटेड विद स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डी मांसपेशियां उसके साथ है। और इसीलिए जो हमारी हड्डी है, कई बार हमको कहते हैं ना घर में जनरली बहनें माताएं कि हमको पेन होता है, जॉइंट पेन हो रहा है, पैर में ये दुख रहा है, वो हो रहा है, तो मैं भी कहूंगी मैं भी उसी में से ही थी। 2016 में यूके में व्हीलचेयर में घूम के आई। भैया कभी हम स्लोप पे जाते थे, मतलब तो मैं चढ़ नहीं पाती थी, मार्केट में भी बहुत चलना होता था, तो तभी भाभी भी व्हीलचेयर ले आती थी, साथ में ले लेती थी। इवन मुझे याद है हम गाड़ी में घूमते थे, लेकिन एक बार हम बस में गए तो भाभी ने बोला नहीं मैं दीदी ले लेती हूँ। तो कहने का भाव है कि ऐसे ऐसी स्थिति में भी मैंने सोचा ठीक है हम गाड़ी में अहमदाबाद में घूमते हैं ना, कोई बात नहीं, यहाँ व्हीलचेयर का अभी यूज करना है तो कर लेते हैं, मतलब हम हमारे मन को मनाते हैं, है ना। तो ये चीज जो हमारी है, क्योंकि हमारा शरीर चलता नहीं है ठीक से, तो ये सब भी ओवरकम किया। जॉइंट्स पेन, हालांकि कैल्शियम का ये प्रॉब्लम होगा वो होगा, ये सब मतलब हम सोचते हैं, लेकिन वो सोच को एक साइड में रख के अगर हम जो है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव में भी चेंज आएगा, हमारा संस्कार बदलेगा, और वहां से हम ये सब हीलिंग डॉक्टर्स को हम काम पे ले आएंगे, यानी ऑर्थोपेडिक एंड रूमेटोलॉजिस्ट जो हमारे अंदर छिपा हुआ है उसको हम काम दे सकते हैं, है ना। तो मेडिटेशन जो है वो मैं कहूंगी कि मेडिटेशन का कारण ही है ये 3-4 घंटे तो मैंने अभी मैं वो सीनियर ग्रुप में लिखती हूँ, लेकिन कई बार मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ। जैसे एक छोटा सा बताऊँ तो मेडिटेशन में मैं बैठी हूँ, है ना, और फिर मैं स्ट्रेचिंग भी कर रही हूँ, मेडिटेशन भी चलता है, स्ट्रेचिंग भी कर रही हूँ, तो लेकिन मैंने वो मल्टीप्लाई टाइम अब तक लिखा नहीं है, तो 5-6 घंटे भी हम कर सकते हैं। और ये इतना ब्यूटीफुली रिजल्ट मिलता है कि हम खुशी का जो हैप्पी हॉर्मोन्स वाला है ना, वो सिक्रेशन हमारे को फील होता है, और जब वो फील होता है ना, तो धीरे धीरे हमको जो करना चाहते हैं ना, वो हम संकल्प से सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सच में आज मैं हरित भाई जो निमित्त बने हैं, अंजलि बहन निमित्त बने हैं, उनको बोलूंगी थैंक यू सो मच कि आप भी निमित्त बने हैं। ये 14 साल पहले मैंने लक्ष्य एक विजन बनाया था
कि बाबा मुझे तो ये मेडिटेशन से फायदा हो रहा है, लेकिन मैं अपने सीए भाई बहनों को भी फायदा देना चाहती हूँ। तो आज मैंने एक पूरा सेशन जो लिया 2019 में भी लिया था, वहाँ स्टेज पर ही थे, लेकिन आज जो ले रहे हैं ना उसकी मजा एक डॉक्टर बन के आई हूँ। तो लोगों को विश्वास भी रहता है कि हाँ, फाल्गुनी बहन ने थोड़ी मेहनत की है, उन्होंने अपना भी एक डिसीज को ओवरकम किया है, वो लोगों का भी हो रहा है। एक पेशेंट हार्ट पेशेंट थे, उनका मतलब है उनका 30% से 45% एनर्जी लेवल आ गया। तो आप देखिए ऐसे कैंसर पेशेंट है, उन्होंने अपना ब्रेस्ट कैंसर क्योर किया है, वो बाहर आना नहीं चाहते, ये अच्छी बात है ना। हर आत्मा की एक अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन वो बहन इतनी खुश है, वो माता है, और उन्होंने मुझे मेल में सब कुछ दिया है। तो देखिए ये एक छोटी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने और मैंने थायराइड मैंने किया शुरू, और उन्होंने कैंसर का किया, और दोनों का चला गया। तो ये भगवान की ही ब्लेसिंग्स, नहीं तो और क्या है। बॉम्बे में भी एक बहन है, शायद इस मीटिंग में भी होगी, उन्होंने भी अभी कैंसर में अच्छा रिजल्ट मतलब ओवरकम किया है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और एक माता है जो ब्रह्मा कुमारीज में इतना मेडिटेशन करती है, उन्होंने भी अपना मेडिटेशन से ही क्योर किया है। हाँ, दवाई लेनी है, जो लेनी है वो लेनी है, उस पीरियड तक लेनी है, लेकिन उसमें फास्टर हीलिंग जो है वो मेडिटेशन करने से आएगी। क्यों आएगी? शुरू में मैंने वो इमोशंस चार्ट बताया था, तो वो बहुत मदद करता है। अभी आपके पास एक लॉजिक भी आ गया है, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अनुभवी आत्मा बन जाएंगे। अभी हम देखते हैं डिजिटल डिटॉक्स, है ना। तो डिजिटल डिटॉक्स, अच्छा फोरम ने क्या रखा, डिजिटल डिटॉक्स, ओके। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? तो जैसे आपने वो पिक्चर में देखा, मोबाइल लेके बैठे हैं, है ना। तो अभी लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए कैसे एनर्जी काम करती है वो आपने एनर्जी स्कैनर से तो देखा, लेकिन मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो आप देखिए हम मैन्युअली कैसे करते हैं। हाँ, आप कान पर लगाइए और यहाँ ऐसे खड़े हो जाइए, थोड़ी इधर आ जाइए। हाँ, यस, इधर है, ठीक है। हाँ, अभी मैं ये 3 उंगली से कोशिश करती हूँ उनका हाथ नीचे ले जाने के लिए। देखिए, ठीक से रखो, आप कोशिश करो वो रेजिस्ट करने की। आवाज आ रही है ना। मोबाइल आपका अभी चार्ज नहीं है, तो वो एनर्जी मतलब आपने अभी रेडिएशन फ्री नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे चलती है। करो, रेजिस्ट करो, आप फोरम की ज़्यादा ही वो हो रही है, ठीक है। चलिए अभी आप मोबाइल को हाँ चार्ज कीजिए, जिससे रेडिएशन फ्री करने की कोशिश करते हैं। आपको आता है, ठीक है ना। फिर भी थोड़ी कमेंट्री में बोलती हूँ तो दर्शक मित्र को भी समझ में आएगा। आप यहाँ कंसंट्रेट कीजिए आत्म शक्ति और परमात्मा की शक्ति। सूर्य चंद्र तारामंडल से भी ऊपर ऊपर मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अभी मेरे परमपिता परमात्मा को मिल रही हूँ, ऊपर ऊपर जा रही हूँ, और वहाँ से जैसे मेरे पिता के साथ मैं नीचे आ रही हूँ। महसूस कीजिए, आप तो आ गई, और अभी परमात्मा की एनर्जी यहाँ पे है सिर के ऊपर, बारिश के रूप में निराकार परमात्मा की शक्ति किरणों के रूप में, वायलेट कलर की किरणें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। प्यार से वो महसूस कीजिए, शक्तिशाली किरणें, आनंद की किरणें। वायलेट कलर 732 ट्रिलियन हर्ट्ज से भी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप महसूस कर रही हैं, जिससे बॉटल में कलर बढ़ता जाता है, इससे आपके शरीर में एक एक सेल में वो एनर्जी भर रहे हैं। आप विजुअलाइज कीजिए आपके पूरे शरीर में वायलेट कलर की परमात्मा शक्ति की किरणें, पावरफुल किरणें पूरे शरीर में जा रही हैं। ब्रेन वहाँ से लेके फेस, शोल्डर, पूरा शरीर लाइट से भरा भरा हो गया।
कलर की एनर्जी, पूरा शरीर लाइट हाउस बन गया, माइट हाउस यानी शक्तिशाली बन गया। और अभी आप में से वो रेडिएशन, आप पूरे लाइट हाउस बन चुके हैं और वो मोबाइल की जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर हो रही है। आपकी मन की शक्ति परमात्मा शक्ति के साथ कनेक्ट होकर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं परमात्मा को और अर्थ एलिमेंट को। अभी आप कान पर लगाइए और हम कोशिश करते हैं। ये प्रयोग है वो व्यक्ति के लिए कि जो हम मन की शक्ति बढ़ा सकते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। कई बार हम थोड़ा ऊपर नीचे भी होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका हाथ अभी ठीक है, आपको रेजिस्ट करना है। आप लाइट हाउस बन चुकी हैं, आपके मोबाइल भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। ओम शांति। देखिए देखिए देखिए, दिस इज द पावर। आप मैन्युअली घर में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। नमस्ते फ्रेंड, अभी बस यहाँ हमने देखा कि जो हमारी मोबाइल की जो एक रेडिएशन होता है, वो मैंने थोड़ा आज टाइम कम था इसीलिए एक वीडियो बना दिया था। बाकी जनरली जो मैं मिलती हूँ तो रूबरू ही कराती हूँ। तो हर कोई आत्मा ये कर सकती है। तो जैसे हम लाइट हाउस बनते हैं, है ना, मैं अभी मेडिटेशन कराऊंगी 5 मिनट। तो जैसे ही हम वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लाइट हाउस बनते हैं और परमात्मा शक्ति के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जो मोबाइल होता है उसका हमने देखा कि बहुत उसका जो रेडिएशन है, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होती रहती है। तो अगर हम मोबाइल को जैसे हम पूरे लाइट हाउस बन के वो एनर्जी रेसोनेट करते हैं और मोबाइल की जो एक रेडिएशन है उसको हम ब्रेक करते हैं, है ना। तो हमारे आसपास जो रेडिएशन पावरफुल एनर्जी का है, उसकी मदद से हम ये जो सामने रेडिएशन हार्मफुल है उसको ब्रेक करते हैं और क्लीन करते हैं। तो फिर वो मोबाइल के साथ अगर हम टेस्टिंग, हमने ये डेमो बनाया तो ये मोबाइल के साथ हुआ, तो फिर भी हम मोबाइल को जैसे क्लीन करके यूज कर सकते हैं। तो हर रोज ये करना चाहिए, 3-4 घंटे में एक बार करेंगे तो आपकी एनर्जी जो हर पल ड्रेन आउट होती है उससे हम सेफ रह सकते हैं। अभी मैं 3 मिनट का एक पानी का जरा देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले हाँ, देखते हैं। यस, तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हमको, अगर हम चलते हैं तो यहाँ से जैसे हम एक अपने लिए खुद के खुद साइंटिस्ट बन के हम जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, ये जो पिक्चर है ना वो ऑक्सफोर्ड का ब्रह्मा कुमारी सेंटर का है जहां हमने विजिट किया था। ये पिक्चर देखिए, ये लिखा तो है ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ तो मेरे बुद्धि में क्या आएगा, वो ऑक्सफोर्ड का सेंटर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप चित्र की मदद लेके अपने आप को जैसे चार्ज करते रहते हैं। तो ये बहुत वंडरफुल बात है कि जिसके लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो अगर हाइट मतलब बढ़ती जाएगी तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अभी के समय में सेफ रखना बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूँ हमको कोई एक एग्जीबिशन नहीं करना है कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन हमको सेफ रहना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारे आसपास जो वायुमंडल होता है ना, वो हमको कॉन्स्टेंटली ड्रेन आउट करता रहता है। तो हम जरूर ये एनर्जी का थोड़ा ध्यान रखें। और थोड़ा आगे देखते हैं। हरीश भाई, क्या 10 मिनट ले सकते हैं? अंजलि बेन? यस फाल्गुनी बेन। ओके, थैंक यू। देखिए, ये पानी वाला जो है ना, जैसे पानी जो है वो ग्रास्प करती है, मेमोरी ग्रास्प करती है। ये जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया था, मशरू इमोटो, और उन्होंने जैसे यहाँ देखिए ये सब बताया है। तो ये जो है वो ये जो पानी का ही एक पिक्चर है, मॉलिक्यूल्स जो बनता है वो है।
और देखिए यहाँ जो है वो सिक का मतलब सैडनेस का एक कह सकते हैं वो है, और यहाँ देखिए ट्रूथ यानी सत्य की अनुभूति और विजडम की, और लास्ट में थैंक यू। अगर हम पानी को मैसेज देते हैं कि थैंक यू गॉड, आपने ये अमृत बना दिया, तो उसमें एक क्रिस्टल क्लियर एक मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाएगा और बहुत अच्छी एनर्जी दे सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक रिसर्च किया था, लेकिन जैसे मैंने बताया बीके सूरज भाई, उनका बहुत सारा वीडियोस है इसी के ऊपर भी। और अभी मैं एक और चीज आपके साथ ये शेयर करूंगी पानी के लिए ही, जो एनर्जी स्कैनर की मदद से हमने एक डेमो बनाया है, वो आप देखिए। क्योंकि अभी क्या है, वहां तो हम आमने सामने है नहीं, फिर भी हम ये इसका मदद ले सकते हैं। अभी एक मैनुअल देखा एनर्जी का हमने, डिजिटल डिटॉक्स वाला मोबाइल का। ऐसे ही लैपटॉप का भी होता है। लैपटॉप को भी आप अपने आप को वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी से चार्ज करें। शांति, नमस्ते। आज हम देखेंगे पानी को कैसे चार्ज करते थोड़ा हैं। इसमें आगे इस जाते हैं। पानी को लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देते हैं, क्योंकि उसको प्रयोग में लाना है ना। देखिए ये जो है ना, एनर्जी कितनी है, ये पानी तो चार्ज है। हाँ ठीक है, ये हमारे घर अभी का हम पानी है ना, इस जनरली पानी को चार्ज हो जाता लो है। फ्रीक्वेंसी जब भी मुझे अभी डेमो करना होता है ना, तो मैं उसको लो फ्रीक्वेंसी में पहले ले आती हूँ। ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे हमारे चलिए। घर में पानी चार्ज हो जाता है, मतलब जो वायुमंडल हम घर में बनाते हैं, जैसे आई विजुलाइज, आई फील, ये पानी खराब है, ये पानी काम नहीं कर रहा है ठीक से, पानी पीने लायक भी नहीं है, अभी बिल्कुल पीने लायक नहीं है। देखते हैं, देखिए देखिए तुरंत ही ये रिपल पानी हो जाएगा। जैसे ही संकल्प मतलब किया एनर्जी पानी पीने लेवल जो लायक है वो नहीं है, मैच पानी नहीं ने होती ग्रहण है, कर लो लिया। प्रोफाइल अब लो देखिए, फ्रीक्वेंसी में आ गया, देखिए, तो ये मशीन ने रिपल कर तो दिया। कहने का भाव है कि पानी तुरंत मेमोरी, हाँ मेमोरी है उसमें, वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो अभी हम सीखेंगे पानी को कैसे चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि पानी जूसेस जो हम बनाते हैं घर में, तो वो सब हम चार्ज करके लेंगे, तो हमारे शरीर में उस हिसाब से हमारे सेल में एनर्जी में फ़र्क आएगा, है ना। बंधा हुआ पानी या तो पैक बॉटल में जो पानी है, उसमें एनर्जी बहुत लो होती है। अच्छा यहाँ तो मैं हाँ इसीलिए थोड़ा हम पानी को कहूंगी, चार्ज करके टाइम की पिएंगे वजह तो से आप हमारी है जो ना यूट्यूब ये शरीर चैनल में है जो 70% सीए से ज़्यादा डॉक्टर पानी फाल्गुनी, है, उसको भी ये बहुत थोड़ा अच्छी लो एनर्जी वॉल्यूम कर मिलेगी। दीजिए। जैसे जितनी बार हम इंटेंट, हाँ यहाँ मैं कमेंट्री देती जाऊंगी आपको कि जैसे आपको एक एक चक्र के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप सीए डॉक्टर फाल्गुनी ऐसा यूट्यूब चैनल है, वहां जा सकते हैं। वहां पूरी सीरीज बनाई है, और ये पानी का वीडियो भी हम रखेंगे। लेकिन पानी के लिए मैं आपको यहाँ कहूंगी, ये मशीन से मैं बस एक विजुलाइज कराना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ही ये डेमो तैयार किया है। लेकिन फिर भी आपके पास मेरा नंबर भी है, तो आप कभी भी मुझे मैसेज करके टाइम लेके बात कर सकते हैं। तो आप देखिए अभी पानी को हम चार्ज कर रहे हैं, ऐसा वीडियो में दिखाया है। तो पानी को चार्ज करने के लिए ऑरेंज कलर का लेना है, क्योंकि ऑरेंज कलर से उसकी 472 ट्रिलियन हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ऑरेंज कलर से हम उसकी साइंस के वो कलर से मदद लेते हैं और प्योरिफिकेशन का एक अफर्मेशन देते हैं कि पानी बहुत अच्छे से प्योरीफाई हो गया। और अभी जैसे परमात्मा की मदद से, तो हमारी सोल एनर्जी को कनेक्ट करनी है परमात्मा से, उनकी वाइब्रेशन लेनी है बारिश के स्वरूप में ऑरेंज कलर की, और फिर आंख खोल के हमको पहले लाइट हाउस बनना है, फिर पानी में रेसोनेट करना है, और ऐसा हमारा इमोशंस बनाना है कि ये जो पानी है वो अमृत बन गया। और अभी ये अमृत जो बन गया उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। ग्रेटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा, 900 से ऊपर हमारा इमोशंस चार्ट बन जाएगा। तो हम जो ये थैंक यू करेंगे गॉड को, तो सीधा ही 1000 बनेगा। फिर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे जल तत्व को। जल तत्व को जैसे ही करते हैं 5 एलिमेंट्स को, तभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और थर्ड शुभ भावना करनी है, उसमें बहुत बल है, वो एनलाइटन होगा हमारी सोल को, है ना। तो थर्ड शुभ भावना क्या करनी है कि जैसे अमृत बन गया, उसका 2 बूंद भी हमको अगर कोई भी शरीर में जाएगा, तो वो शरीर प्योरिफिकेशन का अनुभव करेगा, एनर्जी का अनुभव करेगा। ऐसा करके आप पानी जब लेंगे, तो वो पानी चार्ज हो जाएगा। हम देखते हैं मशीन से थोड़ा आगे,
ये कमेंट्री चल रही है इसीलिए। देखिए अभी मशीन साथ में रहा है ना, तो ये मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, पानी एकदम चार्ज हो गया। तो कहने का भाव है कि पानी को चार्ज करके हम हर रोज लेंगे, है ना, तो बहुत अच्छा है। सुबह अगर पानी चार्ज करके एक बर्तन में पानी लिया, वो चार्ज कर दिया और मटके में डाल दिया, जो भी वेसल है उसमें डाल दिया। हाँ, यहाँ कोई पूछेंगे कि मशीन है, वो मशीन में डालेंगे सीधा, वो मशीन है ना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वो पानी वहां बंधा हुआ है। लेकिन आप अगर जो बर्तन है कोई स्टील का या तांबे का या तो मिट्टी का, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी देगा, क्योंकि मदर नेचर है हमारा, है ना। तो वहाँ आप वो बर्तन कोई भी ऐसा यूज कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे, हम 5 मिनट विजुलाइज भी करेंगे। विजुलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए ये पूरा चार्ट बना हुआ है ना। तो जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है, और उसका इंडिगो कलर है, दूसरा है वायोलेट कलर। क्राउन चक्र को, उसमें ब्लीस है, कोर वैल्यू जो है ब्लीस है, और फर्स्ट वाले की ट्रूथ है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, सातों कलर, सातों वैल्यूज, है ना, और 7 चक्रास, वो उस तरीके से हमको एक्टिवेट करनी है। ये 7 चक्र के लिए आप मेरी यूट्यूब में जाइए, सीए डॉक्टर फाल्गुनी, वहां आपको एक एक चक्र के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो वहां उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन करना क्या है, जैसे फर्स्ट स्टेप आ गया चक्र, सेकंड वायोलेट कलर यानी कि क्राउन चक्र, एंड थर्ड स्टेप सातों चक्रों को एक्टिवेट करना है। और साथ में ये जो पानी है उसको भी चार्ज करके पीना है। मैंने बहुत विस्तार वाला पूरा सार में आज समझाया है। और फूड एनर्जाइज करना है, मतलब हम जितना सात्विक खाएंगे पिएंगे, उसका उतना हमको रिजल्ट मिलेगा, और उस उतनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। एंड लास्ट वाला जो है विजुअलाइजेशन पावर, है ना, ये सब हम करेंगे, तभी हम विजुअलाइजेशन का यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए इट इज लाइक कोड ऑफ कंडक्ट, हमारा एक कंपल्सन है यहाँ पे कि विजुअलाइज करेंगे तो ही हम हीलिंग अपने आप को कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत अच्छा अपने आप को क्योर किया है। तो हम 5-7 मिनट के लिए अभी हम आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा विजुअलाइजेशन क्या करना है। आप बहुत आराम से बैठिए, कंफर्ट, लेकिन सीधा बैठिए, स्पाइनल को सीधी रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। शांति का अनुभव कर रहे हैं हम। हमारी सोल एनर्जी जैसे शरीर में से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। सूर्य चंद्र तारामंडल से भी ऊपर ऊपर ऊपर। निराकार परमात्मा का घर है, जिसे सोल वर्ल्ड भी कहते हैं, निराकारी दुनिया भी कहते हैं। हम भी बिंदु, परम आत्मा भी बिंदु, लेकिन वो पावर हाउस है। जैसे ही उनकी किरणें मेरे बिंदु पर पड़ती हैं, शाइनिंग का अनुभव करती हूँ मैं आत्मा। और जैसे मैंने टच किया, टच द लाइट, टच द क्राउन, टच द लाइट किया, और धीरे धीरे मैं जैसे उनका वाइब्रेशन रूपी हाथ पकड़कर नीचे आ रही हूँ। मेरे शरीर में मैंने प्रवेश किया, और परमात्मा का किरणों रूपी हाथ मेरे सिर पर है। उसमें से बारिश बरस रही है शक्ति की। अभी मैं फील कर रही हूँ मेरे क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, उसमें से परमात्मा की किरणें डार्क ब्लू इंडिगो कलर की मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। मैं लाइट हाउस बनती जा रही हूँ, पूरा शरीर
अभी मैं फरिश्ता बन गई, यानी कि मेरा पूरा शरीर लाइट हाउस इंडिगो कलर का। अभी मैं परमात्मा की किरणों का अनुभव करते करते मैं आत्मा फरिश्ता बनकर घूमने निकली हूँ। अरे वाह, हीलिंग गार्डन है यहाँ तो। भगवान मेरे साथ हैं, साथी बनकर कांस्टेंट एनर्जी का अनुभव कर रही हूँ। आई एम अ ट्रूथफुल सोल। वो मुझे दिखा रहे हैं पिता बनकर। देखो बच्चे, सामने कौन खड़ा है देखो तो जरा। बहुत सारी आत्मा को मैंने देखा। अरे ये सब खुश नहीं है। शायद किसी जन्म में मैंने दुख दिया हो। अभी परमात्मा पिता बना है, वो बाबा है मेरा। बाबा, ये क्या हो रहा है? बच्चे, कोई न कोई जन्म में किसी न किसी आत्मा को आपने दुख दिया है। आप क्षमा मांग लो। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पिता परमात्मा की हाजिरी में मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ। वो आत्माएं प्यार से मुझे देख रही हैं, क्षमादान दे रही हैं। अभी प्योरिटी का वाइब्रेशंस मैं भी उनको दान कर रही हूँ। आत्मा, मेरे में से प्योरिटी का वाइब्रेशंस रेडिएट हो रहा है, वो आत्मा में जा रहे हैं। पवित्रता का अनुभव हो रहा है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। विजुलाइज कीजिए कोई ना कोई ऐसी आत्माएं जो आपको कोई दिखेगी, जिससे आपको माफी मांगना है। मांग लीजिए, प्योरिटी का वाइब्रेशन दे दीजिए। थैंक यू बाबा, आपने मुझे बहुत अच्छे से कराया। अरे बच्चे देखो तो सही, हम और कॉर्नर में जाते हैं, दूसरे कॉर्नर में। अरे वाह, ये सभी को तो मैं जानती हूँ। मुझे दुख हुआ था बाबा, ये आत्माओं ने मुझे थोड़ा सा दुख पहुंचाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो कितनी बात मेरी मानते नहीं हो, फिर भी मैं खुशी खुशी प्यार से तुम्हें प्यार दुलार करता ही रहता हूँ। तो ऐसा नहीं सोचते, चलो माफ कर दो उनको। हे आत्माओं, मैं मेरे बाबा की हाजिरी में आपको क्षमादान दे रही हूँ। अनुभव कीजिए सुकून का, संतुष्टता का। दानवीर बने आप, दाता के बच्चे दानवीर। मांगना नहीं है। थैंक यू बाबा, आपने बहुत अच्छा कराया। चलो बच्चे, और भी हम चलते हैं। देखो 5 तत्वों को, पानी, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। मैं तो ऊपर देखती हूँ, नीचे देखती हूँ, साइड में देखती हूँ। सभी 5 तत्वों को प्योरिटी का वाइब्रेशन देना है। मैं बिल्कुल बच्चे बनकर भगवान के साथ एक कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं ऊपर ऊपर उड़ती चली, फरिश्ता बन गई। अभी क्राउन चक्र में भी एनर्जी ले रही हूँ।
वायलेट कलर की पूरी लाइट हाउस बन गई। अपने आप को हील कर रही हूँ। मैं फिट एंड फाइन हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति सागर के बच्चे मास्टर सुख शांति की आत्मा हूँ। शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं लवफुल स्वरूप हूँ। ट्रूथफुल नॉलेजफुल हूँ। मैं परमानंद स्वरूप आत्मा हूँ। क्राउन चक्र की वैल्यू है आनंद स्वरूप। मैं परमानंद स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा, अभी धीरे धीरे मैं छुट्टी लेकर नीचे जा रही हूँ। ग्रह नक्षत्र सभी को बहुत प्यार से प्योरिटी का वाइब्रेशन देते देते पृथ्वी पर आई, अपने शरीर में प्रवेश किया। पूरे शरीर मेरा एनर्जाइज हो गया। मैं परमात्मा पिता के साथ कंबाइन स्वरूप में क्राउन चक्र बंद किया। थैंक यू बाबा। थैंक यू गॉड फादर, ऑलमाइटी गॉड, एंड थैंक यू 5 एलिमेंट्स। ओम शांति। धीरे से आप आंख खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका जो भी प्रश्न होगा वो आप फोन कर सकते हैं। आई थिंक टाइम हो गया है, 5:30 को मीटिंग भी है। सो थैंक यू सो मच। आप सबने सुना। ओम शांति। अंजलि बेन, थैंक यू। अहमदाबाद सीए ब्रांच, ICI अहमदाबाद ब्रांच, सभी मेंबर्स एंड पूरे ऑल इंडिया ब्रांचेस जो जुड़े हुए हैं, 80+ ब्रांचेस, उन सभी आत्माओं को भी थैंक्स। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सर्जन, परम पिता परमात्मा को भी तहे दिल से थैंक यू। ओम शांति। यस अंजलि बेन। Thank you, Falguni Ben. I am just speechless. Just I opened the eyes after the meditation. એટલે આમ અંદર જ એટલી શાંતિ મને અનુભવાય છે કે આઈ એમ સો કુલ ફ્રોમ વિધિન, કે અત્યારે એકદમ આમ એવું લાગી રહ્યું છે કે જસ્ટ સવારના મોર્નિંગમાં આપણે વિથ ફ્રેશ માઇન્ડ ઉઠ્યા હોય અને એ વખતની જે આપણને શાંતિ ફીલ થતી હોય એવી જ શાંતિ ફીલ થાય છે. ડેલ્ટા સ્લીપ પછીની એ શાંતિ કહેવાય. એટલે જ્યારે આપણે આ કરીએ છીએ ને તો આલ્ફા સ્ટેજમાં આપણે આવતા જઈએ છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ. મેડિટેશન ઇઝ વેરી મચ હેલ્પફુલ. રાઈટ. અને કેન આઈ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન બિફોર આઈ પ્રપોઝ વોટ ઓફ થેન્ક્સ? યસ બિલકુલ. જનરલી આપણે મેડિટેશન કરીએ તો વી ગો ટુ અ ડિફરન્ટ ઝોન. એટલા બધા થોટ પ્રોસેસ ને બધું ચાલતું હોય કે તમે એકદમ અલગ ઝોનમાં જતા રહો. તો શુડ વી ડુ ઇટ વિથ સપોઝ તમારું યુટ્યુબ ચેનલ છે કે એમને મેડિટેશનનું કંઈક પીસ સોંગ વાગતું હોય કે એવું કંઈક બી કે થોટ્સ આવે તો આવા દેવા જોઈએ? થોટ્સ આવે તો આવા દો, પણ જેટલું તમે સોલ કોન્શિયસમાં આવવાની કોશિશ કરશો ને, એટલે ધીસ ઇઝ લાઈક અવેરનેસ. હા, આપણે ઘરમાં ગેસ્ટ આવવાના હોય તો આપણને ખબર હોય કે આટલા આટલા ગેસ્ટ આવવાના છે, પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે એક એક ગેસ્ટની સાથે 5-10 અલગ અલગ બધા આવે અને આપણે એક 5-10 ગેસ્ટને ઇન્વાઇટ કર્યા હોય અને એની સાથે બીજા 40-50 એમની સાથે 5-5 આવે તો આપણે એમને ઓકે કરી લઈએ, હે ને? તો આપણે આપણા થોટ્સને વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનું છે. એટલે વિઝ્યુલાઇઝેશન ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ વેપન એવું કહી શકાય. તો જેટલું આપણે એમાં જશું એટલો આપણને ફાયદો થશે. ઘણી વખત શું થાય, મ્યુઝિક ચાલતું હોય છે, હા, બહુ સરસ મ્યુઝિક હોય છે, બહુ બધા અલગ અલગ મ્યુઝિક્સ પણ અવેલેબલ છે અને રાઇટ બ્રેનનો એક પાર્ટ છે જે આ ભાષા સમજે છે મ્યુઝિકની. લેકિન વિઝ્યુલાઇઝેશન છે એ મ્યુઝિકથી પણ ઉપર કામ કરી રહ્યું છે. એટલે વિચારો આપણા જે છે ને, मतलब एक लक्ष्य रखिए कि मुझे ये चक्र को अभी ठीक करना है. मान लीजिए बीपी है ना,
तो मुझे अभी हार्ट को अभी ठीक रखना है, तो अभी क्या करेंगे? तो जैसे लक्ष्य दे दिया और फिर हम जैसे मैंने यूट्यूब में अपना पूरा एक सेशन वहाँ लिया है, तो ग्रीन कलर से हम वो विजुअलाइजेशन करेंगे। तो ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी, लव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 600 आसपास की है, इमोशंस वाली। तो वहाँ वो बेनिफिट मिलेगा, अनकंडीशनल लव, यानी कि लाइट हाउस बनिए और फिर वो जैसे पूरी दुनिया को देते जाइए। अभी जो ये वायुमंडल है ना, वो उसमें ये वाइब्रेशन रेडिएट हो रहा है, तो अच्छा वाला भी हो रहा है, खराब वाला भी हो रहा है। यूनिवर्स को जितना हम जो देंगे वो वापस हमको मिलेगा। तो कोई क्या कर रहा है वो नहीं, हमको क्या करना है। तो मेरा लक्ष्य है कि मुझे हार्ट को ठीक करना है, तो मैं यही करूंगी कि मैं सबको मतलब एक अनकंडीशनल लव दूंगी। मैं कोशिश वही करूंगी और मेडिटेशन में भी वही मैंने कोशिश की, और परमात्मा को साथ में रखना है, तो वो संभाल लेता है। तो धीरे धीरे वो आप देखेंगे ना, तो आपका थॉट फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। जी, Thank you so much for always explaining us in a very much detailed. Heads off to you. બધું તમે એટલું બધું એટલી ઝીણવટથી ને એટલું ડિટેલમાં દર વખતે સમજાવો છો ને. Thank you so much. Got to know many new things about chakras, inner energy, impurity, purity. What was wonderful was karma ka hisab. Also, I still remember your last year session. The journey from CA to Dr. CA is inspiring. Thank you for always guiding us, enlightening us, and we look forward for many more sessions with you, Falguni Ben. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Chairman. Thank you so much, ma'am. It was an amazing session. Always pleasure to learn from you and attend your sessions. Very, very happy, and I think all the participants are really blessed to have attended this session. And I'm sure from tomorrow we have another very important session coming Yes. up. yes. So we all see you all tomorrow at the same time, 4 to 5. And thank you once again, ma'am. Om Shanti. कल के लिए मैं हाँ एक चीज मैं बताऊंगी, तो कल जो आत्मा है ना, स्पीकर है ना, वो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत मतलब इतनी सेवाएं कर रहे हैं, और 10-10 हजार की सभाएं भी उन्होंने ली हैं। मतलब ऐसी आत्मा है, और वही फोकस है कि हमको सकाश, मतलब सकाश यानी डिस्टेंस हीलिंग, वो सकाश सेवा में बहुत मतलब अपना निमित्तपन दिखा रहे हैं। उनकी जो अभी निमित्त बने हैं, यूट्यूब चैनल है पावर ऑफ सकाश, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। तो पावर ऑफ सकाश में अभी 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत लॉकडाउन में बहुत सेवाएं ये चैनल ने भी की है, और वो चैनल को संभालते हैं, मतलब देखरेख करते हैं शक्तिराज भाई एंड उनके सीनियर BK सूरज भाई जी, जो मैंने 2-3 बार आज आपको बताया। तो ये बहुत सुंदर, कल के स्पीकर भी बहुत सुंदर हैं। ठीक है, तो जरूर हम आएंगे, मिलेंगे, सुनेंगे उनको। जी, Thank you all. Look forward to see you tomorrow. Hardik Bhai, I can see Hardik Bhai, Palomi Ben, Shobna Ben. Look forward to see you tomorrow, and Om Shanti to everyone. Thank you. Thank you, Falguni Ben. थैंक यू। ओम शांति।